series of illness to wellness. Now, we've been doing these webinars since past 2 years, and they have been very popular because they are very informative. And in all our webinars and all our programs, we are very lucky to have some of the best experts in the fields related to health, especially I would say from all over the world and stars of Indian medical science and Indian medical practice. So, we've been doing health awareness programs. Before that, also, those have been contact programs in which we've been organizing health awareness camps, especially about chronic diseases, non communicable diseases like diabetes, hypertension, hypothyroidism, obesity. We've been making people aware, conducting free tests, and a lot of people, thousands and thousands of people, have benefited from those. And I'm sure even more people have benefited from our programs in this series of Illness to Wellness because the world has gone actually virtual and these programs are also virtual. So I won't be taking much time. I'm very thankful to Shri Anil Rajput ji sir, who's also the chairperson of the Council of the AFSCR. And he's been kind enough to be with us throughout so many years, and he's been the force and the inspiration behind these programs. So welcome once again, sir, and I would request you to give a brief introduction and start the program. Shri Anil Rajputji. Thank you very much, Dr. Kesri. Dr. Pawan Rawal, Head Unit 1, Gastroenterology, Artemis Hospital. Dr. Kapil Sharma, Director and HOD, Gastroenterology, Patra Hospital and Medical Research Center. Dr. Jyoti Singh, nutritionist, author, and diet consultant. And Dr. Rajesh Kesri, founder and director, Total Care Control, Delhi NCR EC member, RSSDI, and my long-term partner in several sessions that we have had on illness to wellness. Good morning and warm welcome to the webinar on good digestion, healthy life, organized by SHM under the Illness to Wellness campaign. At the outset, before I speak any further, I want to thank all the doctors and health professionals who have been actively coming forward and supporting this campaign that not only raises awareness on various health issues, but also promotes healthy living and well-being through holistic measures. We are greatly enthused by this support, and it most certainly motivates us to remain committed to this journey of integrating health and wellness. Today's webinar is centered around a significant function of our body, the digestive function. Digestion, as we know, is important because our body needs nutrients from the food we eat and the liquids we drink in order to stay healthy and function properly. Without a healthy digestive system, the body cannot properly break down and absorb nutrients from the food. Nutrients like amino acids from protein, fatty acids from fat, and simple sugars from carbohydrates, which provide energy for growth and cell repair. Healthy gut is also linked to overall good health and the prevention of related health problems such as inflammatory bowel disease, obesity, diabetes, liver disease, chronic heart disease, and so on. There are about 100 trillion good and bad bacteria living in the gut. When a person has a healthy gut, good bacteria and bad bacteria keep a healthy balance. But in case of an unhealthy gut, a person might have more inflammation throughout the body, resulting
in a lower immune system. People with unhealthy gut also have a greater risk of digestive diseases, which include acid reflux, gallstones, and irritable bowel syndrome or IBS. Digestion related conditions such as constipation, diarrhea, bloating, indigestion, heartburn are common from time to time. However, experiencing these frequent causes major disruption to our life, and it could be a sign of a more serious disorder that needs medical attention and treatment. In a large scale multinational study, the authors found that more than 40% of the world's population suffers from a chronic gastrointestinal problems. In India, too, the incidence of the disease related to the digestive health is increasing steadily. As per a recent study carried out by Wellness 365, inflammatory bowel disease, for example, affects over 1.5 million patients in India, putting the country second only to US with 1.6 million patients. A gut health survey by Abbott also suggests that 22% of the adult Indian population is suffering from constipation. There are many factors that are responsible for the rise, like a westernized diet, lack of fresh fruits and vegetables in our diet, stress, lack of sun, adulterated food, contaminated water, highly refined oils, all of which affect our intestine lining, affecting the balance of good bacteria in the body. Like all complicated machinery, the digestive tract does not always run smoothly. Therefore, it is of paramount importance that we pay attention on what we eat and how we eat. One of the simplest ways to improve digestion is by eating gut-friendly diet. Fiber-rich food such as cereals, fruit, wheat-based products, leafy vegetable, etc. can ease digestion. Studies have shown that probiotics improve symptoms of bloating, gas, and pain in people with IBS. Intake of probiotics is fermented foods is said to be significantly improve digestive health, reducing stress, getting exercise, practicing mindful eating, and a good night's sleep also aids to digestion. Human digestion is intricate, and it is quite evident that it impacts overall health. A robust immune system, a healthy heart, a healthy brain, better mood, and restful sleep are widely influenced by effective digestion. Therefore, keeping this process in good standing is desirable and advantageous to our overall health and well being. I'm sure the medical experts on the panel today will throw light on this subject in greater detail and also educate us on how we can employ healthy habits so that our digestive system can function with greater efficiency. Without any further delay, I would once again welcome them and look forward to hearing their expert views on the subject. I wish this webinar a great success. Thank you very much and Jai Hind. Back to you, Dr. Kesri. Thank you so much, sir. Thank you so much. That was a very nice and a very elaborate introduction to this topic, and you've raised some very important points which we would take up further in discussion with our honorable panelists and specialists. So thank you for the introduction, sir. So now we'll take the program from here forward. Definitely digestive system and digestion is a very important
issue. And I, as a doctor and a physician, know that hardly there would be a patient who's never complained of problems with digestion, whatever in whatever way they might have been. So I'm sure all our viewers and listeners would have at some point of time have had suffered some problem which they actually attribute to digestion, either indigestion or in some other way. But we are going to learn from experts today what is digestion and what problems can be there attributed to that. So I think I would request Dr. Kapil Sharma sir to start our today's session. And I would actually ask you a very, very, very complex question, which I'm sure you being a specialist make it absolutely easy for our viewers. So give us a short overview of what is digestion, the different phases. ये digestion होता क्या है? So please unmute yourself. First of all, I extend my sincere thanks to all panelists. And my name is Dr. Kapil Sharma. I am working as a director and HOD at the Batra Hospital Medical Research Center, New Delhi. Now come to the topic, what is the digestion? Digestion means it's a breakdown of large insoluble food we ingest to smaller soluble substances that can be easily absorbed through inside the bloodstream and they can be utilized. हिंदी में क्या बताना चाहूँगा कि जो हम खाना खाते हैं उसको जो ब्रेक डाउन करने के लिए स्मॉल पार्टिकल सोल्युबल पार्टिकल में जो कन्वर्जन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड के थ्रू लीवर में जाता है उसको एक डाइजेशन बोलते हैं. ये एक लंबा प्रोसेस है दैट स्टार्ट इवन माउथ इटसेल्फ. आपने बिल्कुल बोला. एक्चुअली जो हम कहते हैं कि डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट्स इवन बिफोर यू हैव ईटन. जैसे आपको खाने की खुशबू आती है या आपको खाना नजर में आता है तो आपके मुंह में पानी आने लगता है. तो ये जो पानी आने लगता है दैट एक्चुअली इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. Dr. Pawan sir, would you like to add on something to all this? No, great. Thanks for having me. I'm Dr. Pawan Rawal. I'm heading gastroenterology at Artemis Hospital, Gurgaon. So actually, the crux of the webinar was given by Mr. Rajput. You can't have a better discussion in 3 minutes as he did. So that was great actually. Now, but if we elaborate digestion, and Dr. Kapil said, it's what actually is, starting from mouth till the small intestine terminal part, the juices are produced by body. They break down the larger particle to the smaller particle enough to be absorbed in the blood so that they can provide you energy. This is a one-liner. You can compare it with your kitchen. I mean, you bring some food in your kitchen, the food is cooked and then this is provided to all of the household people, and then that's why you get energy from. So it's a breakdown and metabolically converted products that we get after that. So it's all is digestion in a literal language. Yeah, I mean, it has complicacy otherwise, but simplifying it, Dr. Kapil said it was all same. Thank you. Thank you. So when we talk about digestion, usually people somehow associate it with पेट and stomach कि गैस बहुत बनती है. If they have some problem related to digestive system, one of the most important complaints, or probably one of the prime complaints, is actually gas or acid or stomach. So please tell us a little bit about stomach and acid. What role does that have in digestion? First of all, regarding the indigestion is misnomer. Most of the people, they correlate with the acidity and constipation, which is not right. Indigestion means it's in the difficulty in this process, breakdown process. The symptoms can be same like most patient complain regarding the abdominal pain, bloating, heartburn, and constipation. They can be symptoms of any other GI problem, not necessarily indigestion. We rule out to all other similar pathology before labeling them to indigestion. We'll look for some alarm symptoms, whether they are having weight loss, blood loss, and some difficulty in swallowing. So these are the alarm symptoms that we have to look at, and then finally made a diagnosis of indigestion. Indigestion is simply, I will say, it's dyspepsia. Dyspepsia basically imbalance between the production of acid and pepsin, which is being released from the stomach. Acid is the
substances released from the stomach and that allow pepsin to work. Then pepsin work on the food which comes in the stomach and So it we can further speak in Hindi break also down. to make things easier for कि हमारे श्रोता बेहतर समझ पाए, so कुछ चीजें हम हिंदी में भी समझा सकते हैं. तो बेसिकली एसिड का रोल यही है कि जो पेट में खाना आता है उसको डाइजेस्ट करना और जो एंजाइम वहाँ रिलीज करते हैं उनको एक्टिवेट करना और इससे जो लार्ज फूड बोलस जो पेट में आता है उसको स्मॉल फूड बोलस में बदलना और जो पेट के अंदर कुछ एंजाइम काम करते हैं उनके लिए बेटर इन्वायरमेंट प्रदान करना. तो इससे क्या डाइजेशन इजी हो जाता है और पेट के अंदर ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है कि जो एसिड बन रहा है उससे अपने अंदर की परत को वो डैमेज नहीं होता. यही यदि एसिड आहार नाल इसोफेगस में आ जाए तो उन पेशेंट को रिफ्लक्स के सिम्टम्स हो सकते हैं, हार्ट बर्न हो सकता है. यदि कहीं स्टोमक की लाइनिंग में ब्रीच हो जाए तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताई कि कभी कभी हम जब इसके बारे में सोचते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लेमैन, तो लगता है कि भगवान ने सचमुच में चमत्कार बनाया है हमारा पेट, कि पेट के अंदर तेजाब होता है. और आप सब जानते हैं तेजाब वही तेजाब होता है जो हम घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं. और जो हमारा पेट है वो मांसपेशियों का एक बहुत ही नाजुक ऑर्गन है. तो लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो उस तेजाब को हमारी पेट से छूने नहीं देता और वो तेजाब भी काम करता है और पेट भी रहता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है. तो आपसे डॉक्टर पवन पूछेंगे कि ये पेट में तेजाब ज्यादा क्यों हो जाता है? क्या ऐसा होता है? लोग बोलते हैं कि मुझे एसिडिटी की बीमारी है, मुझे एसिडिटी, ये क्या होता है एक्चुअली? ये अच्छा क्वेश्चन है. जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया, तेजाब या एसिड आपको चाहिए. दिस इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द होल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. और ये केवल डाइजेशन नहीं करता, ये एक डिफेंस भी है. जो हम खाना खाते हैं उसमें जितनी भी गंदगी है, जितने इन्फेक्शंस हैं, कीटाणु हैं, उनको सबसे पहले न्यूट्रलाइज करने का काम एसिड ही करता है जो आपके पेट में. सो नंबर एक, ये तो डिफेंस भी है और दूसरा ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है. बढ़ता कैसे है? एक तो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें एक टेंडेंसी है अलग अलग तरीके से एसिड प्रोडक्शन की. सो डिफरेंट पीपल आर प्रोन और प्रीडिस्पोज्ड फॉर सर्टेन इश्यूज इन विच एसिड प्रोडक्शन इज ऑल्सो वन. कुछ लोग के अंदर ये एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, किसमें कम, बट एक रेंज है जिसके आधार पे वो प्रोड्यूस होता है. सबसे बड़ा कारण इस वक्त पे उसके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का है लाइफस्टाइल. अगर हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं, हम रिएक्ट बहुत करते हैं, ओबीज हैं, माने वजन हमारा अपनी हाइट के मुकाबले बीएमआई में फिट नहीं होता है, हम एडिक्शंस करते हैं, जैसे अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करें या बहुत स्मोकिंग करें, इन सबों से, या कुछ डाइट्स हैं जो प्रोवोक करती हैं एसिड को, ऐसा कुछ करते हैं, लैक ऑफ स्लीप है ये. सो मेजर रीजन ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोडक्शन लीडिंग टू सिम्टम्स, और जिस वर्ड का नाम इन्होंने लिया डिस्पेप्सिया, the issue is mainly lifestyle. Yes, since we are now having increased life expectancy, अब हमारी एज बढ़ रही है, हम और इलनेसेस से पीड़ित होते हैं, तो हम कुछ दवाइयाँ भी यूज करते हैं. सपोज मैं हार्ट डिसीज का पेशेंट हूँ तो मैं एस्प्रिन लूंगा, सपोज मैं डायबिटिक हूँ तो मैं मेटफॉर्मिन लूंगा. सो कुछ मेडिसिन से भी एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है. तो ये सभी कारणों से एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है और तब हमको सिम्टम आने लगते हैं जिसको हम गैस या फुलनेस या पेन या डिस्कम्फर्ट या मतली आना जिसको हम बोलते हैं. बिल्कुल, बहुत बहुत सही डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतने अच्छे और सरल रूप में बताया हमारे श्रोताओं के लिए. चलिए, हमने जाना कि एसिड तेजाब होता है और तेजाब बहुत सारी वजह से बढ़ता है. कम सोना, ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करना, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ जैसे काली मिर्चें, ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा खाने से भी तेजाब ज़्यादा होता है. रात को खाना ना खाएं, सुबह पेट तैयार रहता है खाना ग्रहण करने के लिए, खाना ना आए तो भी तेजाब बढ़ता है. और ये सब लंबे समय तक रहे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे अल्सर भी हो सकते हैं. अब हम आते हैं ज्योति जी के पास. ज्योति जी, आप बताइए क्या करें कि ये तेजाब ना बढ़े? क्या ऐसी चीज खानी चाहिए? हाँ जी, देखिए पहले तो जैसे डाइजेशन के बारे में आपने पूछा, तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट डाइजेशन इन लिटिल डिफरेंट वे. पहले जो डाइजेशन पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम फूड को डिस्कस करते हैं. तो फूड है क्या? फूड कोई भी चीज़ है जो हमें खाने पे ताकत देता है ना, विच गिव्स अस एनर्जी, या हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स देता है जिससे हमारी ग्रोथ होती है या सेल रिपेयर होता है. तो अब ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में कैसे यूज होंगी? दैट इज थ्रू डाइजेशन. तो जो बॉडी फूड पे जो काम करती है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं नॉर्मल लेमैन के लिए. ठीक है जी. अभी ये डाइजेशन
अभी जैसे आप एसिड के बारे में पूछ रहे हैं, तो एसिड बढ़ता कैसे है? ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है, इसके बढ़ने के काफी रीजंस हैं। एक, या आप अपनी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की है उससे ज्यादा अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका स्टमक ज्यादा एसिड रिलीज करेगा। अगर आप ज्यादा फैट ले रहे हैं तब भी आपका स्टमक ज्यादा एसिड रिलीज करेगा। अगर आप रेड मीट की मात्रा आपकी डाइट में ज्यादा है, जैसे प्रोटीन तो आप ले रहे हैं लेकिन दैट इज थ्रू रेड मीट जिसमें कि फैट भी ज्यादा है एंड प्रोटीन का कंटेंट भी ज्यादा है, तब भी आपका एसिड रिफ्लक्स, एसिड स्टमक में ज्यादा रिलीज होगा। ज्यादा आप मसाले खाते हैं, ज्यादा तला हुआ चीज खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, आप जंक फूड खाने की ज्यादा आदत है, पिज्जा हो गया, आपके बर्गर्स हो गए, एरेटेड ड्रिंक्स खाते हैं, तो ये सारी जितनी भी अनहेल्दी चीजें ये सब आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में एसिड को ज्यादा रिलीज करती हैं, विच इज अनहेल्दी फॉर यू इन अ लॉन्ग रन। तो इसके लिए भी अब डाइट होती है जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो एज दी दिस वेबिनार विल प्रोग्रेस, विल डिस्कस श्योरली ऑन दैट ऑल्सो। अच्छा, चलिए Regarding डॉक्टर साहब, हाँ regarding प्लीज, आप कुछ बोलना चाहते थे? regarding acid production, I would like to highlight that एक H. pylori का infection होता है स्टोमक के अंदर। Sometimes बिल्कुल बिल्कुल। that can also lead to the increase in the acid production, or sometimes can lead to ulcer formation। तो उसकी वजह से भी अल्सर बन जाते हैं। तो then we need to identify these patient and treat if they are very symptomatic। अच्छा सर, एक अक्सर लोगों के अंदर एक लोगों की कंप्लेंट भी होते हैं, और डाइजेशन के बारे में ज़्यादातर लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जैसे खाना पेट में गया तो पेट से आगे कैसे बढ़ता है? मतलब क्या अपने आप ही खाना नीचे जाता रहता है? कुछ शरीर में ऐसा होता है कि पेट की खाना आगे मूव करता है? हाउ डज इट हैपन एक्चुअली? तो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होती है जिसे कि पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ से शुरू होता है। तो उसके अंदर एक कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा हिस्सा रिलैक्स करता है ना। तो इस प्रोसेस से फूड आगे बढ़ता है। ये ना कि आगे प्रोपेल करने में सहायक होता है, बल्कि ये डाइजेशन भी हेल्प करता है, जिसे चर्निंग बोलते हैं। स्टोमक में जो स्टार्ट होती है तो उससे क्या पार्टिकल भी छोटे हो जाते हैं और उनका सरफेस एरिया भी बढ़ता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से उनका अब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है। जी, बहुत इवन अच्छा। तो ये इतना इफेक्टिव है, यदि इंसान यदि उल्टा भी लेट जाए ना तो भी फूड आगे प्रोपेल होगा। कमाल है। एक और चमत्कार हमारे शरीर के अंदर की हमारी आंतें जो हैं केंचुए की तरह चलती हैं। आप कैसे भी रहें, आपका खाना सही दिशा में ही जाएगा। तो अगर पेट से जब खाना नीचे उतरता है तो फिर वो कहाँ जाता है, आगे क्या होता है? चलिए इस जर्नी को आगे ले सकें। पवन जी, आप बताइए। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सो स्टमक से खाना निकला, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, डिफरेंट जी डिफरेंट पार्टिकल्स जो आपके फूड थे वो कन्वर्ट हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जिसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है। उनका फर्दर ब्रेक डाउन हुआ और वो ब्लड से अब्जॉर्ब होके आपके शरीर में चला गया, लिवर में चला गया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब जो बच गया वो रेजिडू है। वो रेजिडू नीचे जाएगा, बट अभी वो काफी हाइड्रेटेड होता है, उसमें पानी बहुत होता है, तो वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत उसमें से पानी की मात्रा को सुखाती है और स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, क्योंकि ये वो रफेज है जिसका अब शरीर में कोई यूज नहीं है, तो उसको बाहर निकालना है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और रफेज है उसको मिला के उसको डिहाइड्रेट किया जाता है कोलन के द्वारा, उसमें से पानी की मात्रा को कम किया जाता है ताकि एक वेल फॉर्म स्टूल बने। उसको कोलन के थ्रू, माने बड़ी आंत के थ्रू रेक्टम में भेजा जाता है। रेक्टम एक रिजर्वायर है जहाँ पे वो स्टूल रहता है, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन्स रिस्पॉन्स टू द अर्ज, फिर वो उसको इवैक्यूएट करता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस द पर्सन गोज थ्रू। अच्छा, एक बात बताइए सर, कि जब हमने कुछ भी खाया और वो जब हमारे शरीर से निकलने में अप्रोक्सीमेटली कितना समय निकल जाता है? हाँ, तो एक डाइजेस्टिव प्रोसेस में पूरे में 4 से 6 घंटे यूजुअली लगते हैं, जिसमें लगभग 60 से 90 मिनट स्टमक में लगता है, अगले कुछ घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में लगते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम इज टेकन बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें वो स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। थैंक यू। अच्छा, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सो डॉक्टर कपिल, अक्सर हम सुनते हैं एंजाइम्स के बारे में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कुछ गोलियां भी आती हैं, कैप्सूल भी आते हैं। सो व्हाट आर दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वेयर डू दे कम इनटू प्ले? कहाँ बनते हैं वो?
सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ के अंदर ही। तो माउथ में भी एंजाइम होते हैं। आप जो सेलाइवरी ग्लैंड लेते हैं उसके अंदर भी अमाइलेज होता है, तो वो स्टार्च का डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। फिर पेट में जैसे ही आते हैं तो पेट में प्रोटीन डाइजेशन होता है। एक लाइपेज होता है, उसकी मात्रा आल्दो कम होती है, वहाँ भी स्टार्ट होता है। सबसे जो मेन जो सिक्रीशन होता है वो पेंक्रियाज से होता है। पेंक्रियाज आपको प्रोटीन को भी तोड़ते हैं, जिसे प्रोटीनेज बोलते हैं। अमाइलेज जो होते हैं स्टार्च को भी तोड़ते हैं, और लाइपेज होते हैं फैट को भी तोड़ते हैं, जो फ्री फैटी एसिड। बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्प्शन होता है। गॉल ब्लैडर जो होता है उस वो वहां से एक बाइल रिलीज होता है, जो कि लीवर द्वारा सिंथेसाइज होता है। तो जो बाइल इन सब सब्सटेंसेस आके मिलता है, तो एक इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। तो बेसिकली ये बाइल साल्ट से इनके जो चारों तरफ एक सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और उनको एक बेटर इन्वायरमेंट प्रदान करता है, ताकि इनका अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। तो ये सारी जरूरतें होती है, तब जाके फूड अब्जॉर्ब होता है और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बिल्कुल, कुछ जो आपने बहुत जी जी कुछ हार्मोन जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी रिलीज होते हैं, कि जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन है। कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवाता है, जहाँ से बाइल निकलता है। सिक्रिटिन पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। पेंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर जो एंजाइम निकलते हैं वो इनिशियली एक्टिव नहीं होते। वो उसको एक्टिव करने के लिए भी कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं। फिर बाद में जैसे ही वो आते हैं, फिर वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया कि एक्चुअली जो हम खाना खाते हैं, खासतौर पे अगर उसमें फैट या चर्बी होती है, तो चर्बी और जो हमारे पेट के अंदर का जो हमारी आंतों में एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा खून है, वो सब पानी है। तो उस चर्बी को डिसॉल्व करने के लिए पित्त बहुत मदद करता है। पित्त मतलब जो गॉल ब्लैडर से, पित्त की थैली से जो सिक्रीशन होता है। एम आई राइट, डॉक्टर कपिल? या हाँ, एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें और डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बहुत ही कम मात्रा में ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत आवश्यक होती हैं। खाने को, खाने के एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं, कि जो आपने चीज खाई है वो चीज आपके खून में जाती है, आपके शरीर को लगती है कि नहीं। हमने खाने के बारे में, फूड और न्यूट्रिशन के बारे में तो बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितनी भी पौष्टिक तत्व नहीं खाएं, लेकिन अगर आपका शरीर में वो एब्जॉर्ब नहीं होते, आपके सेल जिसको उसकी आवश्यकता है वहां तक नहीं पहुंचते, तो कोई ना कोई शरीर में कमी रह जाती है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो शुरुआत में अनिल राजपूत सर ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने एक टॉपिक टच किया, गट। आज से कुछ साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में गट माइक्रोबायोम, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। अब हमें समझ में आ रहा है कि शरीर में कितनी सारी बीमारियां, गट में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, उस पर निर्भर होती हैं। खासतौर पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जिनकी राजपूत जी ने चर्चा की। तो एक ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है। तो पवन जी, आप कुछ हमें सरल शब्दों में बताइए कि गट माइक्रोबायोटा क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी हाईलाइटेड आल्सो। नाउ हमारा पूरा इंटेस्टीन, हमारा पूरा लार्ज और स्मॉल इंटेस्टीन कुछ बैक्टीरिया से कॉलोनाइज्ड है, और एक्चुअली वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो आपका मुंह, आपकी छोटी आंत, आपका बड़ी आंत, आपकी कोलोन कुछ बैक्टीरिया से कॉलोनाइज्ड है। ये वो हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो ट्रिलियंस की मात्रा में है। ये आपके शरीर के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, भाईचारे के रिलेशनशिप में है। कुछ बैक्टीरिया आपको देते हैं और आप कुछ बैक्टीरिया को देते हो। आप बैक्टीरिया को नरिश करने देते हो, और बैक्टीरिया उसके रिस्पॉन्स में कम से कम भी 8 से 10 मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें वो आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, आपकी गट की इंटीग्रिटी में हेल्प करता है, कोई ब्रेकडाउन नहीं होने देता, आपको स्वस्थ रखता है। रादर अब बहुत डाटा इसके ऊपर आया है जो बताता है कि बहुत सारी इलनेसेस, ना केवल इंटेस्टीन की बल्कि बाहर की, जैसे ब्रेन की, हार्ट की, हर जगह की, वो प्रॉब्लम्स का रिलेशनशिप गट के बैक्टीरिया से पाया गया। और जब गट के बैक्टीरिया में डिसबायोसिस हुआ, दिस मीन्स कि आपके गट बैक्टीरिया उथल पुथल हुए, तो वो बीमारियां बढ़ी।
सो इसका मतलब है कि मोटे तौर पे आपको अपने गट बैक्टीरिया को संतुलित रखना होगा, और उसको संतुलित रखने में आपके अच्छे खान पान, आपकी बैलेंस्ड डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी स्ट्रेस, आपकी इन सब चीजों का बहुत रोल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे अब ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं और हमें ये जानकारी है कि कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़, डिस्लिपिडेमिया और हार्ट की बीमारी, इन बीमारियों की वजह बहुत हद तक ये जो हमारी गट में, हमारी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं तरह तरह के, अगर वो गलत प्रकार के हो जाएं, वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएं, तो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे हमारे शरीर में एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। सरल शब्दों में लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपके शरीर में, आपकी खून की नली में एक धीमी धीमी आग जलती रहती है, एक लौ सी जलती रहती है, जो अल्टीमेटली आपके शरीर को खराब कर देती है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ज्योति जी, आपके पास आएंगे और स्पेसिफिकली ये न्यूट्रिशनल क्वेश्चन है। आजकल बहुत चर्चा होती है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है? हाँ जी, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट ऐसी डाइट है जो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये इन्फ्लामेशन, इसके काफी रीजंस होते हैं। एक तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डिजीज, आप उसकी वजह से, आपको उस बीमारी की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, या आपको इन्फ्लामेशन कैन बी जेनेटिक ऑल्सो, आपको पेरेंट्स में ऐसी कोई इश्यू था कि वो आप में आगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन रहता है, या आप डाइट ऐसी ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड आपने ऐसी डाइट खाई है जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है। तो अब इस इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए हम लोग काफी तरह की डाइट देते हैं। तो मेन जो इसमें डाइट हम यूज करते हैं, दैट इज, उसको हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। तो इसमें मेन तो बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमारी डाइट में रहते हैं वो तो सिंपल एंड सादा खाना है, आपको घर का खाना। बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिंजर, अगर मैं अदरक की बात करूं तो हमारे इंडियन हाउस होल्ड में काफी यूज होता है, लेकिन इसको भी लेने का एक तरीका है। आप इसको जिंजर को कैसे लेंगे जिससे आपकी इन्फ्लामेशन खत्म हो जाए? तो आपको क्या करना है, आपको 1 या 1.5 इंच का पीस लेना है, छोटा सा। अगर आपको उसको वेट की मैं बात करूं तो 5 to 7 ग्राम्स का आप वजन का एक टुकड़ा लेंगे जिंजर का। आप पानी उबाल लेंगे 1 कप, उसमें सिर्फ आप 2 मिनट के लिए उसको डालेंगे घड़ी देख के, जिंजर के पीस को। अगर ग्रेट करना है ग्रेट कर ले, नहीं तो आप उसको थोड़ा पीस के भी डाल सकते हैं। और सिर्फ 2 मिनट के लिए आप उसको उबालेंगे, ढक्कन दे देंगे एंड लेट इट स्टीप फॉर अ मिनट। उसको स्टीप होने दे थोड़ी देर के लिए और छान के उसको पी लें। तो इट इज, आई मीन, वन ऑफ द बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी फूड। इसके अलावा हमारी डाइट में काफी मसाले आते हैं, जैसे क्लोव हो गया, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, सिनेमन है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया। इसके अलावा अगर मैं ग्रेन्स की बात करती हूँ तो मिलेट्स आपकी बॉडी से बहुत हद तक जो है इन्फ्लामेशन को खत्म कर देते हैं। तो ऑल इन ऑल, अगर आप हेल्दी खा रहे हैं, आप मसाले जैसे मैंने बताया, क्लोव, सिनेमन, अदरक, इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होगी। अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर कपिल सर, हमने इस पूरे प्रोसेस के बारे में बात की। एक चीज और है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद आऊंगा, वो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ऐसे कौन से फूड्स होते हैं, तो अगली बार मैं आपसे पूछूंगा इसके बारे में जो चीजें। अभी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कपिल जी, आपसे आपसे शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ाएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जो इस पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को असर करें, जिसकी वजह से हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो पाए। प्लीज। तो इस प्रोसेस को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट, माल डाइजेशन एंड माल अब्जॉर्प्शन। माल डाइजेशन मेनली बिकॉज ऑफ जो पेंक्रियाज की प्रॉब्लम है, क्योंकि पेंक्रियाटिक जूस नहीं लगा, जैसे कि क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस हो गई, और अदर जो प्रॉब्लम है पेंक्रियाज की। तो और दूसरा माल ऑब्जॉर्प्शन, जो इंटेस्टाइन की जो अंदर की परत है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कभी कभी किसी को वीट एलर्जी हो गई, किसी को इसको इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रोन्स डिजीज, अदर माल ऑब्जॉर्प्शन डिजीज होती है ट्रॉपिकल स्प्रू। देर आर टू मेनी अदर प्रॉब्लम, क्रोनिक जियारडीएसिस, देर आर टू मेनी थिंग्स। तो यदि फिर हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करना होता है। जी जी, बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू सो मच। पवन जी, आप हैं? जी जी जी। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब ने बताया वीट एलर्जी, तो आजकल दिस हैज बिकम
a sort of fad as well, because बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट रोटी नहीं खाना चाहते, खासतौर पे बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, लगता है कि हम सबको वीट से एलर्जी है। हालांकि सबको वीट से एलर्जी नहीं होती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों में होती है। तो ये सीलियाक डिजीज, वीट एलर्जी, ये क्या होती है, कुछ बताइए हमें इसके बारे में। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। आई विल टेक 1 or 2 minutes ऑन दिस। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, आराम से फैशन बताइए। में भी है, आपने सही कहा, इट्स अ फैशन नाउ, बट लेट मी टेल यू द रेलेवेंस। एक्चुअली वीट एलर्जी मेजरली दो तरह की है। एक है वीट प्रोटीन एलर्जी, जिसको हम सीलियक डिसीज बोलते हैं, और एक है वीट इंटॉलरेंस। ये दोनों अलग अलग है। या वीट इंटॉलरेंस को हम लोग कई बार नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी बोलते हैं, माने सीलियक के अलावा ग्लूटेन से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी का नाम दिया गया। वीट प्रोटीन एलर्जी या सीलियक डिसीज या ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी क्या है, जिसमें एक्चुअली जन्म से, चाहे मैनिफेस्ट वो लेट हो सकती है, लेकिन जन्म से आपको प्रीडिस्पोजिशन है कि आपकी आंत में आपका ग्लूटेन या आपका वीट वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, अब्जॉर्ब नहीं होगा, और वो आंत को डैमेज करेगा। एक तरह से आप एलर्जिक हैं उससे। ये है सीलियक डिसीज। बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन अडल्ट में भी मैनिफेस्ट हो सकती है। इन लोगों में क्योंकि अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में डैमेज होता है, तो खून की कमी होना, ग्रोथ का कम होना, हाइट पूरी ना पहुंच पाना, डायरिया होना, लूज मोशन होना, ये सब सिम्टम कॉमनली आते हैं। दो कुछ एटिपिकल सिम्टम भी हो सकते हैं। ये क्लासिकल ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। इसका डायग्नोसिस इजी है। आप एक ब्लड टेस्ट करते हैं, एक एंडोस्कोपी द्वारा उस एरिया की जांच करते हैं जिसके अंदर वो डैमेज करता है, उसको प्रूव करते हैं और ग्लूटेन फ्री डाइट पे डाल देते हैं। दिस इज सीलियक। दूसरा है ग्लूटेन से बट नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जिसको हम इंटॉलरेंस का नाम देते हैं। और जैसे ज्योति जी हैं, ये बताएंगे कि फोडमैप डाइट्स का कंसेप्ट आया है। बेसिकली ब्लोटिंग गैस, फ्लैचुलेंस गैस का ज्यादा पास होना, डकार आना, डिस्कम्फर्ट, ये अब कुछ डाइट से लिंक्ड है, जिनको फोडमैप डाइट का नाम दिया गया है। फोडमैप का मतलब है फर्मेंटेबल ओलिगो डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड एंड पॉलीओल्स। तो ये कुछ डाइट्स हैं जो आपके अराउंड होती हैं, इनको खाने से वो गैस बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि वो डाइजेस्ट होती नहीं है और बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करके उसमें से गैस बनाते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ फूडमैप डाइट या अदरवाइज भी वीट का रोल है। सो वीट से आप इंटॉलरेंट भी हो सकते हैं। ये ग्रेजुअली आता है, एज के साथ बढ़ता है, एलिमिनेशन से पता चलता है। इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। जो ब्लड टेस्ट सीलियक को डायग्नोस करने के लिए होते हैं उसमें ये आता नहीं है। तो इट इज एक्चुअली डन एज वी डू फॉर एवरीथिंग। सपोज मैं मिल्क को सेंसिटिव हूं तो मिल्क हटा के देखता हूं एज एलिमिनेशन। सिमिलरली आई हैव टू डू एलिमिनेशन ऑफ द ग्लूटेन एज वेल टू प्रूव और डिसप्रूव दैट वेदर यू आर intolerant to gluten or not. Now, कुछ डाटा अभी वेस्ट से ओरिजिनेटेड है, जिसमें ये पाया गया है कि ग्लूटेन का रिलेशनशिप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज, डिसलिपिडेमिया, फैट का ऊपर नीचे होना, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। सो एक डाटा आया है जिससे ग्लूटेन को पाया गया। बट इरेशनली ग्लूटेन बंद करना मुश्किल है, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री। नॉर्थ इंडिया में व्हीट इज अ वेरी स्टेपल डाइट। सो इरेशनली बंद नहीं करना है। हो सके तो सलाह लेनी है कि क्या मैं इन 3 कैटेगरी में कहीं भी फॉल करता हूं कि नहीं करता हूं। यस, बिकॉज एज आई सेड व्हीट इज अ स्टेपल डाइट, तो आप न्यूट्रिशन इंसफिशियंसी में भी जा सकते हैं अगर आप इरेशनली ग्लूटेन को बंद करते हैं। बट ये 3 तरह की चीजें मैं ग्लूटेन के बारे में हाईलाइट करना चाहता था। डॉक्टर ज्योति शायद फूडमैप के बारे में अच्छा बता पाएंगे। चलिए उनके पास भी हम आएंगे, बट क्योंकि आपने ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो ये सजा भी आप ही को मिलेगी, क्योंकि आई थिंक जितने भी मरीज डॉक्टरों के पास जाते हैं, आई थिंक नंबर 1 कंप्लेंट वुड बी गैस। तो ये गैस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट क्या होता है? इज इट एक्चुअली गैस और इज इट समथिंग एल्स? हाँ, बहुत अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपिल ने बताया, लिटरली सभी लोग इंडाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। हमारे लिए वो बहुत वेग टर्म है। मेरे लिए सीने में जलन, पेट का फूलना, पेट का दर्द, पेट की ब्लोटिंग, एक्सेस फ्लैचुलेंस और एक्सेस फ्लैटस बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं। अगर केवल हर्ट बर्न है, जलन है, तो हम GERD माने रिफ्लक्स से डील कर रहे हैं। अगर हम पेट की फुलावट, पेट में डिस्कम्फर्ट, कम खाना खाने से मेरा पेट जल्दी फूल गया, तो हम डिस्पेप्सिया से डील कर रहे हैं। और अगर हम पेट के दर्द या कॉन्स्टिपेशन से डील कर रहे हैं तो शायद हम IBS से या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से डील कर रहे हैं। दिस इज मोटा मोटा ऑल 3। सो रिफ्लक्स, डिस्पेप्सिया एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कॉन्स्टिपेशन। अब जो गैस वर्ड, अगर हम थोड़ा सा और आगे आए इसमें,
तो जो कॉमनेस्ट कंप्लेंट है जिसमें मुझे लगता है कि मेरा पेट टाइट हो जाता है, पहले मैं ज्यादा खाना खा पाता था, अब मैं कम खाना खाता हूँ तब भी मेरा पेट फूल जाता है, या मुझे बर्प्स या बेल्चिंग बहुत है, डकार बहुत है, या मैं बहुत अत्यधिक मात्रा में गैस पास करता हूँ, ये टिपिकल गैस है। ये टिपिकल गैस एसिडिटी से अलग है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सभी चीजों के लिए एंटासिड लेते हैं, हम एसिडिटी को खत्म कर देता है, जबकि गैस प्रोडक्शन और एसिड प्रोडक्शन में दोनों में फर्क है। एसिड प्रोडक्शन एसिड की मात्रा से ज्यादा है, गैस प्रोडक्शन एक्सेस फर्मेंटेशन से है। अब एक्सेसिव फर्मेंटेशन पे आते हैं कि हमें पता चला कि हमें गैस की मात्रा ज्यादा बनती है और एक्सेसिव फर्मेंटेशन से बनती है मोस्टली। अब इसका भी संबंध वापस लाइफस्टाइल से है, तो केवल डाइट नहीं, यस देयर आर सर्टेन डाइट जिसका मैंने पहले भी यूज किया नाम, फोडमैप डाइट्स हैं, जिनके अंदर में मिल्क है, जिनके अंदर में कैफीन है, माने टी कॉफी है, ग्लूटेन है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, जिनसे ये डाइट गैस ज्यादा बनती है। वी नो अबाउट देम एंड प्रोबेबली वी कैन ट्राई एंड अवॉइड देम, बट गैस ज्यादा बनने का अभी भी सबसे बड़ा रिलेशनशिप डाइट से ज्यादा लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल में सेम उसी बातों को मैं कहना चाहूंगा, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, रादर रिएक्शन टू स्ट्रेस, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ अपनी स्ट्रेस को, स्मोकिंग, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनके ऊपर हम कंट्रोल करें तो शायद काफी हद तक हम गैस पे काबू पा सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। यस, बोलिए कपिल जी, यू आर सेइंग समथिंग। हाँ हाँ, गैस के बारे में बताना चाहूंगा। 3 तरीके से गैस बन सकती है। या तो लोग गलती से बाहर की गैस को ज्यादा मात्रा में इंजेस्ट कर लें, या अंदर के बिल्कुल बैक्टीरिया बिल्कुल। बहुत ज्यादा गैस बनाएं, या फिर हमें कोई ऐसी रुकावट है एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर जिससे गैस ट्रैप हो सकती है। तो मोस्टली जो देखा गया है कि इसमें संख्या होती है कि लोग गलती से स्वेलो करते वक्त या पानी पीते वक्त या खाना खाते वक्त बाहर की गैस को अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं, फिर वही गैस बाहर निकलती है डकार के रूप में, जिसे बोलते हैं हम बहुत डकार से परेशान हैं। तो ये 3 तरीके, हम्म। बाकी डॉक्टर पवन ने इसके बारे में अच्छे से हाईलाइट किया है। अच्छा, आप दोनों से एक चीज और पूछना चाहूंगा जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसको दो शब्दों में मैं एज ए फिजिशियन समझ सकता हूँ। लोग बोलते हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन, दूसरा पेट नहीं साफ होना। कि बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब पेट नहीं साफ होता, एक बार जाते हैं फ्रेश नहीं होते थोड़ा। ये एक बहुत कॉमन चीज है, तो आप प्लीज आप दोनों इस पे थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। कॉन्स्टिपेशन का सिंपल मतलब होता है कि पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। सप्ताह में वो किसी को 2 दिन में एक बार आया है, इसको वेगली डिफाइन करते हैं कि सप्ताह में 3 बार से कम स्टूल हो रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अब हमको इसको कॉन्स्टिपेशन को और वेल्युएट करना पड़ता है, हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि ये किस वजह से कॉन्स्टिपेशन है। तो जो आप ये बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री डेफिकेशन। जी। मतलब इसके अंदर है कि स्टूल रेक्टम में है लेकिन वो बाहर नहीं आया है। तो ऐसे कुछ मरीज होते हैं, उनमें एक कॉन्स्टिपेशन से मिलती जुलती बीमारी होती है जिसे कि हम आप बोल सकते हैं डेफिकेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जब भी हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो मैं 4 सिम्टम्स हमेशा पेशेंट से पूछता हूँ। आप टॉयलेट में कितना टाइम बिताते हैं, कितनी देर लगती है, आपको कितना जोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के अंदर, आपको कुछ वेदर यू रिक्वायर सम मैनुअर टू डेफिकेट ना, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी गुदाद्वार के वहाँ कुछ ब्लॉकेज फील हो रहा है और आपको जाने की इच्छा हो रही नहीं हो रही। तो यदि ये 4 सिम्टम्स हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन अलोन नहीं है, वो साथ में उसको डेफिकेटेड डिसऑर्डर, मतलब इसका मतलब जो कहते हैं गुदाद्वार है उसकी जो स्फिंक्टर होते हैं और रेक्टम की मसल्स होती है, दोनों के असमंजस में जो दोनों के जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन एक प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से स्टूल बाहर आता है। तो दोनों के अंदर इसका कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, उसका रिलैक्सेशन हो रहा है, तो स्टूल बाहर आया। यदि दोनों आपस में नहीं मिलते तो स्टूल बाहर नहीं आता और लोगों को ऐसा लगता है कि स्टूल अभी भी अंदर है और ऐसा वो बोलते हैं कि स्टूल अच्छे से साफ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत सरल शब्दों में आपने बताया। पवन जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन एंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। तो बिल्कुल बहुत अच्छा डॉक्टर कपिल जी ने बहुत अच्छा बताया। बस इम्पोर्टेंट ये है कि फिजिशियंस को इस बात पे जोर देना है। It's very important to differentiate constipation and incomplete evacuation because constipation में hard stool है, laxative अच्छा काम करेंगे। अगर patient को incomplete evacuation है, this means the stools are normal in consistency or some variation is there, but उसका पेट साफ नहीं हो रहा because either तो उसकी bowel movement slow है या उसके rectum के मसल उसको evacuate करने में मदद नहीं कर रहे। तो अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा, जो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है उसका संबंध फिर से लाइफस्टाइल से है।
और मोटा है जो स्ट्रेस से। तो केवल लेग्सेटिव का यूज जो हम कराते हैं वो एक्चुअली सही नहीं है। अगर हम 1 या 2 मिनट भी अपनी पेशेंट की स्टोरी सुने तो वील बी वेरी क्लियर दैट नहीं, उसको कॉन्स्टिपेशन से ज्यादा इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की प्रॉब्लम है और उसके अंदर कोई ना कोई एंजाइटी का कंपोनेंट, स्ट्रेस का कंपोनेंट या ऐसा कुछ है। तो हम उस पर थोड़ा सा उसको अगर काउंसल करें 2 मिनट 3 मिनट के लिए तो वील गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। अगेन जैसा हमने एसिडिटी में पाया, वी टेंड टू प्रिस्क्राइब मोर एंटासिड, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, मेप्राजोल. So little bit focus on the lifestyle. You'll see the wonders. You know, the effects would be much better than prescribing medicines if we focus on the underlying root cause that usually is the lifestyle in these disorder. और इनको actually नाम भी दिया गया है, functional gastrointestinal disorder. मतलब क्या है FGID का, कि बीमारी नहीं है बट ऊपर नीचे है, चाल ठीक नहीं है, स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा, इंटेस्टाइन ठीक से मूव नहीं करती, रेक्टम ठीक से खाली नहीं होता। तो ओनली थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज फोकस ऑन द लाइफस्टाइल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि आपने स्ट्रेस और लाइफस्टाइल की बात की तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे आईबीएस के बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का तो नाम ही यही है, इरिटेबल बाउल है, एज द नेम सजेस्ट। बाउल्स को हुआ कुछ नहीं है, इंटेस्टाइन को कुछ नहीं हुआ है, वो थोड़ी इरिटेटेड है। तो जब हम खुद इरिटेट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिलैक्सेशन करते हैं। सो सिमिलरली इरिटेटेड बाउल को रिलैक्सेशन चाहिए। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? 3 तरह का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। एक है कि मेरी आंत ज्यादा चलती है, जिसमें मुझे बार बार मोशन जाना पड़ेगा, इसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डी टाइप कहते हैं, डायरिया टाइप, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। एक है कि मेरी इंटेस्टाइन कम चलती है, स्लो हो गई, पेट साफ नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सी टाइप बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन टाइप। एक मिक्स है। आप कई बार देखेंगे लोगों की कंप्लेंट होती है, डॉक्टर साहब कभी तो मुझे कब्ज हो जाती है, कभी मुझे डायरिया हो जाता है, पता ही नहीं चलता, बहुत कंफ्यूज हूँ। तो इसको हम मिक्स टाइप बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मिक्स टाइप। मैनेजमेंट बहुत ही इजी तो मैं नहीं बोलूंगा, बट पेशेंट फोकस्ड है। अगेन जैसा हमने बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। पता करने का कोशिश करिए कि आपका पेशेंट या केवल आईबीएस से पीड़ित है या सच में ये किसी चीज की मैनिफेस्टेशन तो नहीं है, किसी बीमारी की मैनिफेस्टेशन तो नहीं है। डॉक्टर कपिल जी ने पहले डिस्कस किया था अलार्म सिम्टम्स का, तो हमारा काम है पूछना कि उसको कोई अलार्मिंग सिम्टम्स तो नहीं है। खून की कमी होना, ब्लीडिंग होना, अत्यधिक मात्रा में दर्द होना, बहुत उल्टी आना, ग्रोथ का रुकना, वेट लूज हो जाना, अगर ये नहीं है और पेशेंट का कंपोनेंट है एंजाइटी का, तो उसको आईबीएस के तरीके से मैनेज करना होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे हमेशा लगी अपनी प्रैक्टिस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को स्ट्रेस केवल एक्सोजिनस नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि उसको वर्क प्लेस पे, घर पे स्ट्रेस है, उसको अपने सिम्टम का भी स्ट्रेस है। एंड देन इट बिकम्स अ विशियस लूप। मुझे दिक्कत है, मैं उससे परेशान हूँ, उस दिक्कत से फिर सिम्टम आते हैं, तो देयर इज अ विशियस लूप दैट नीड्स टू बी ब्रोकन। तो फिजिशियन का रोल है उसके सिम्टम को अच्छे से कंट्रोल करके देना एक बार, ताकि वो एटलीस्ट इस स्ट्रेस और सिम्टम के जो कॉम्प्लेक्स में फंसा है उससे वो निकले। आप म्यूटेड है राजेश जी। मैं बोल रहा हूँ कमाल की बात है, आपने इतने अच्छे से समझाया है कि हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और बहुत हद तक इस चक्रव्यूह से हमें निकालेंगी ज्योति जी। एंड आई एम श्योर कि उनको मुझसे बहुत शिकायत है, वो पहले भी बोल रही थी कि मैं समय नहीं देता, तो अभी ज्योति जी आपको समय दे रहा हूँ। आप हमें बताइए प्री प्री प्रो और प्रोबायोटिक क्या होते हैं, क्योंकि जब आप इसके बारे में बताएंगी तो बहुत सारी चीजें जिसकी चर्चा हुई है उनके जवाब आ जाएंगे, तो इसके बारे में बताइए हमें। हाँ जी, देखिए पहले तो जितनी भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, आप डाइजेशन की बात कर लें, आप इनकॉन्टिनेंस की बात कर लें, आप जर्ड की बात कर लें, एसिडिटी, हार्ट बर्न, आई मीन नेम अ डिजीज, सब की सब बीमारियां हम लोग डाइट एंड लाइफस्टाइल के साथ ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 चीजें होती हैं। एक होती है आपकी डाइट, ठीक है जी, एक होता है आपका लाइफस्टाइल, एक होता है आपके जेनेटिक्स, एंड द फोर्थ वन इज योर एज एंड जेंडर। तो ज्यादातर हम जेनेटिक्स एंड एज एंड जेंडर के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, बट बाय चेंजिंग योर फूड एंड योर लाइफस्टाइल मैक्सिमम बीमारियों पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। अभी कमिंग टू योर पॉइंट, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का, फूड का आप पूछ रहे हैं, तो जो हमारे जो गट फ्लोरा है, वो गट फ्लोरा मीन्स हमारी बॉडी में ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी वो कैसे हमारी बॉडी में कैसे फ्लरिश करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, और वो क्यों हमारे लिए जरूरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी इनको हमारी बॉडी में गट में ग्रो करने के लिए चाहिए इनको एक फूड। तो वो जो फूड है उसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक फूड, ठीक है, विच इज यूजुअली अ काइंड ऑफ फाइबर ओनली। चाहे सॉल्युबल फाइबर की बात कर लें आप, चाहे इनसॉल्युबल फाइबर की बात कर लें। अभी आपका जो ये गट फ्लोरा है, जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स एक बार यूजुअली बताएंगे ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर किस किस चीज में होता है जो हम खाते हैं?
हाँ जी, जो इनसॉल्युबल से सब्जियों में जैसे पालक पुलक है, जो चीज आपको पचती नहीं, जो आपका मतलब दैट गिव्स बल्क टू योर स्टूल, उसको हम इनसॉल्युबल फाइबर बोलते हैं। सॉल्युबल जो पच जाती है, लेकिन उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी बॉडी में वो थोड़ी कम होती है, उसके लिए एंजाइम्स जो है बॉडी में नहीं रहते आपकी डाइजेशन के लिए। सो दैट इज द डिफरेंस। तो ये क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे राजमा, और कुछ नाम बताइए कि हमारे दर्शकों को पता चले कि क्या हाँ होता जी, है। हाँ जी, जी, सारी फ्रूट्स एंड वेजेस में आपके सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर सभी में मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, जैसे आप ड्रम स्टिक की बात करते हैं, अगर जो भी उसका जो हार्ड पार्ट होता है, जिसको आप च्यू वगैरह नहीं कर सकते है ना, या जो आप उसको च्यू करने में जो ट्राई करते हैं, जो कितना सा पार्ट आपके अंदर चला जाता है, दैट इज इनसॉल्युबल फाइबर आपका। तो ऐसी हार्ड चीज जो आप अपनी डाइट के थ्रू कोई ले रहे हैं, जो इसमें प्लांट फूड्स में, दैट इज इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर आपके फ्रूट्स एंड वेजेस में सभी है। आप अपना फ्रूट्स का पील साथ में लेते हो तो आप यू आर ईटिंग सॉल्युबल फाइबर। सो दैट इज द डिफरेंस। अभी प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का आई वाज टेलिंग यू, कहाँ पहुंचे थे हम? बैक्टीरिया। हाँ जी, बैक्टीरिया का मैं बता रही थी। डॉक्टर्स यूजुअली जब भी आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो यू मस्ट हैव सीन कि दे प्रिस्क्राइब यू बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन ऑल्सो। वाई? बिकॉज जो आपका गट का बैक्टीरिया है, वो आपकी बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। ये ब्यूटायरेटिक एसिड होता है, जिसको मतलब ऐसे कितने एसिड्स हैं जो गट फ्लोरा आपके अंदर बनाता है, सिक्रीट करता है, जो आपकी पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो इस वजह से हमारा गट फ्लोरा जितना ज्यादा होगा, उतना हमारे लिए अच्छा है। अभी जितने भी आपके फर्मेंटेड फूड्स हो गए हैं ना, जैसे आपका अचार हो गया, या आप कोई भी डोसा हो गया, इन सब चीजों में आपका बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है। आपका दही हो गया, तो इन सब चीजों से बढ़ता है आपका प्रोबायोटिक। दीज आर दी प्रोबायोटिक फूड्स। लेकिन अगर आपको किसी को अगर जर्ड का इशू है, एसिडिटी का इशू है, तो वो अचार वचार ना खाएं। मतलब एक्चुअली डिपेंड्स आपको किस तरह का हेल्थ इशू है और उसको आपने कैसे ठीक करना है। मतलब जो मैं सजेशन अभी आपको दे रही हूँ कि अचार में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है या फर्मेंटेड फूड में है, ये सब चीजें आपको एसिडिटी वालों को नहीं लेनी है। लेकिन सो बेसिकली जो भी डाइट होती है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। आई मीन टू जनरलाइज दिस थिंग विल नॉट बी इजी। बट देन अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो आपको अगर आप अपनी डाइट में होल ग्रेन्स भी ले रहे हैं, मिलेट्स भी ले रहे हैं, अगर आप सोडियम कम ले रहे हैं, नमक कम खाते हैं, आप चीनी कम खाते हैं, और आपके दालों का सेवन अच्छा है, फ्रूट्स और सब्जियां आप ज्यादा खाते हैं, तो आपको किसी तरीके की कोई बीमारी लगने का कोई चांस नहीं है। बट बशर्ते आप सैर भी करते हैं, आपको मिनिमम एक आपको एक 8,000 स्टेप्स लेने ही चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे दोबारा से रिएटरेट करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो डाइट और लाइफस्टाइल हमें कंट्रोल करना और मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो उसका इलाज कराना, डॉक्टर को दिखाना भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि चलो, अब खास तौर पे मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, अक्सर डायबिटीज़ के मरीज, अभी मैं थोड़े दिन डाइट चेंज करके देख लूँगा, थोड़े दिन वॉक करके देख लूँगा। लेकिन अगर आपका HbA1c 15-16 है और आपको 15 साल से डायबिटीज है, तो हो सकता है आपको कुछ दवाइयां लेनी पड़े, इंसुलिन लेनी पड़े। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका हाँ ब्लड जी। प्रेशर एक बहुत ज्यादा है, तो एक इन चीज सब मैं भी चीजों के साथ आपको डॉक्टर से सलाह लेनी भी जरूरी है और उचित इलाज कराना भी जरूरी है। अब पवन जी, आई वुड लाइक टू कम टू यू, थोड़ा सा आप भी सरल शब्दों में डाइट के बारे में बताइए। हाँ, तो जैसे डॉक्टर ज्योति लास्ट में बोल रही थी, डाइट इज इम्पोर्टेंट। एक जो कंसेप्ट है वो बैलेंस डाइट का है। इसको हम ईट वेल प्लेट भी बोलते हैं। एक अगर आप इसको एक सार में, एक समरी में समझे, ईट वेल प्लेट होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि आप सारा दिन, 7 दिन या 30 दिन, महीने के साल आप कुछ भी नहीं खाएं और साधु बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू बी फॉलोइंग द ईट वेल प्लेट एटलीस्ट 80-90% ऑफ योर टाइम। 10-20% यू मे ब्रेक द रूल्स एंड यू कैन एंजॉय। सो जिसमें दो कंसेप्ट हैं ईट वेल प्लेट में, तो वो बताती है कि जो खाना आपका एक वक्त का है या एक कंसेप्ट इसको आप बोलेंगे, उसमें फाइबर्स का होना एटलीस्ट 30% तक फाइबर हो। लगभग 30 से 40% आपके सीरियल्स, ग्रेन्स हो, चाहे वो आप कुछ भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आप राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, वो आपकी इच्छा पे है और आपके कल्चरल बैकग्राउंड पे है। और बाकी 30% या 20% आपके प्रोटीन की मात्रा हो, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है। और डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आप अपना नॉन वेज फूड भी इसमें डाल सकते हैं। तो एक बैलेंस फूड खाना होगा। एक जो जंक फूड है, जिसकी मैं अगर आपको रियली डिफाइन करूं जंक फूड, तो एनी फूड विच इज रिच इन सॉल्ट, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड वेरी लो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स। मतलब मोटे तौर पे बात करें कि जो जमा हो जाएगा उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है।
तो जंक फूड को ओकेजनली ले, मैंने इट शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक वंस अ वीक और समथिंग लाइक दैट। और वो डिपेंड भी करता है कि आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं, आप नॉर्मल वेट में हैं या नहीं है। तो अगर आप रियली ओवरवेट हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, डिसलिपिडेमियाज की, तो कोशिश करके और उसको यूज करें। एक लास्ट बात जो डॉक्टर ज्योति आखिर में कहना चाह रही थी, फिजिकल एक्टिविटी, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. I would rather bring physical activity much above the diets. And I would say that if you are exercising well, you deserve more food. और मैं कभी अपने मिशंस को बोलता भी हूँ कि आपको अपना खाना कमाना पड़ेगा, ऐसे मत खाइए आप खाना. You earn your food. If you earn your food, you can break the rules. If you don't earn your food, you can't have anything. So this is what a concept of balanced diet and eat well plate and physical activity should be. आई थिंक आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई, अर्न योर फूड, earn your living and earn your food. This is more important than just eating your food. Wonderful, sir. कपिल जी, आप भी कुछ फूड के बारे में अपनी तरफ से बताना चाहेंगे इन योर वे? तो फूड्स वी हैव टू, जिस जिस पेशेंट को अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग फूड होता है। जैसे यदि किसी को IBS है तो उसके लिए हम बोलते हैं लो फूड मैप। लो फूड मैप जैसा डॉक्टर पवन ने बताया, इट्स गिव ए मिनिमल स्टिमुलस टू इंटेस्टाइन एंड द गैस प्रोडक्शन इज लेस, देन दिट्स गिव ए लिटिल बिट सिम्टम्स, द पेन जो हो रहा है, ब्लोटिंग जो हो रही है वो कम हो जाती है। जिनको जैसे GERD है उनके लिए हम जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, कोला ड्रिंक, देन दिस शुड बी अवॉइडेड। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन भी हमें देखना है। जैसे मैंने बताया, यदि कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, देन हाई फाइबर विल वर्क। जो मैंने बताया, जिनको अनसेटिस्फैक्टरी डेफिकेशन हो रहा है उनके अंदर फाइबर देंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि फाइबर कहाँ देना है, फाइबर कहाँ नहीं देना। जैसे अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बात करें, यदि वो डिजीज एक्टिव है तब हमें लो फाइबर डाइट करनी पड़ेगी, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट भी कम करने पड़ेंगे। और ये देखना है कौन सी बीमारी, यदि किसी चीज का एलर्जी है तो उस सब्सटेंस को बंद करना पड़ेगा। जो माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है उस चीज को हमें उनको हाई न्यूट्रिएंट डाइट देनी पड़ेगी। तो इट्स डिपेंड ऑन डिजीज। बिल्कुल सर, हमने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की ऐसा बात नहीं की, उसके क्या लक्षण होता है, इसमें क्या होता है, बताइए इन्फ्लेमेटरी प्लीज। बाउल डिजीज की बात करता हूँ तो ये दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस सबसे पहले ये बड़ी आंत के निचले सिरे, जिसे रेक्टम बोलते हैं, वहां से इसकी शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये बढ़कर कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करती थी, जिसके प्रमुख लक्षणों के अंदर रक्त में, मल में खून का आना, पेट में दर्द का होना, बुखार होना, बार बार मल जाने की शंका होना, ये सिम्टम्स होते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम जो है फ्लेक्सिबल ट्यूब इंटेस्टाइन में एनल केनाल के थ्रू रेक्टम एंड कोलन में इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां से बायोप्सी लेते हैं और इसको फिर कंफर्म किया जाता है। और फिर इसको कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट के सिम्टम्स जानते हैं और उसको हम कैटेगराइज करते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर के अंदर, एंड देन वी ट्रीट अकॉर्डिंग टू इस सीवियरिटी। थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी एनलाइटनिंग, क्योंकि कुछ ये बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें बताओ। जी जी। रिगार्डिंग क्रोन्स डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो कहीं से भी शुरू हो सकती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को दोनों को इन्वॉल्व करती है। इसमें मेनली पेट में दर्द, उल्टी का होना और गैस का फंसना, ये सम्मिलित हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए CT स्कैन किया जाता है और कभी कभी अंदर की परत से बायोप्सी ली जाती है। पवन जी, एक बात बताइए कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग सालों साल एसिडिटी की गोली, जैसे पेंटोप्राजोल और आपने बताया रैबिप्राजोल या ओमेप्राजोल या रैंटैक लेते रहते हैं। तो क्या ये उचित है, ऐसा करना चाहिए? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आई थिंक, और मुझे लगता है जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा हम लोगों के लिए रेलेवेंट है। Should we prescribe these medicine forever? Should we do something so that your patient, they don't take acidity medicine, rather they have good quality of life without that? Wonderful. So as we discussed, हमारे जितने भी symptoms हैं डिस्पेप्सिया के, जिनमें गैस का बनना, फुलनेस या जलन के या GERD के, वो आपके लाइफस्टाइल से ज्यादा रिलेशन में है। तो प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए कि आपके पेशेंट जब भी आपके पास आए, या पेशेंट खुद भी अपने आप को समझे कि उनके सिम्टम लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को उचित दिशा में लेके जाएं। आप उन्हीं फैक्टर्स को कंट्रोल करें जिनके बारे में अब तक बहुत एम्पली डिस्कस किया गया। अगर ऐसा करते हैं तो आप शुरू में सिम्टम रिलीफ एसिडिटी की दवाइयों से पाएं, जिसमें सभी लोग, ये रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल है। 3 से 4 हफ्ते बाद इनको आप कम करना शुरू करें और ग्रेजुअली इसको टेपर ऑफ कर दें। ये एक उचित दिशा है जिसके हमें जाना चाहिए। या किसी भी वजह से अगर हम सालों साल
ये एसिडिटी की दवाई खाते हैं, जैसे सपोज मुझे कार्डियक इशू है, मैं पेन किलर खाता हूँ, मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ, मुझे पेन किलर खाने पड़ते हैं, तो उस दशा में पेन किलर की जब हम यूज कर रहे हैं तो साथ में एंटीसिटी की दवाई लेनी पड़ती है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रिक्वायर्ड। बट इन दैट केस लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एसिडिटी मेडिसिन, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोला जाता है, उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स में बिकॉज बड़ी सिंपल सी चीज है, आप उस एसिड को कम कर दे रहे हैं जो आपका एक डिफेंस था, तो अगर आप उस एसिड को कम कर देंगे तो आप अपने आप को इन्फेक्शंस को प्रोन कर रहे हैं। उसमें चाहे वो लंग के इन्फेक्शन है, चाहे वो गैस्ट्रो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होता है इसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल कहते हैं। अब कुछ एक पदार्थ है आपकी डाइट में जो एसिड से अब्जॉर्ब होते हैं, B12 है, कैल्शियम है, विटामिन है, तो वो भी कम अब्जॉर्ब होंगे। कुछ इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, वो कुछ दवाइयों से compete करते हैं, वो उनका एक्शन कम हो जाएगा। कुछ इनके डायरेक्ट साइड इफेक्ट्स हैं कुछ ऑर्गन्स पे, जिनमें किडनी भी एक है। So, especially senior citizens more than 60 years, immunocompromised people, they should not take proton pump inhibitor or rabeprazole or pantoprazole group for a longer period, because this will make you prone to infections. आपके भी अंदर B12 की कमी आने का चांस है, हड्डियां वीक होने का चांस है, थोड़ा सा डाटा फ्रैक्चर्स का भी है बिकॉज ऑफ दी ऑस्टियोपोरोसिस, माने हड्डी में कमजोरी आना। किडनी के पेशेंट स्पेशली, उनके अंदर की CKD माने क्रोनिक किडनी डिसीज के बढ़ने का चांस है। तो इन सभी वजहों से इनका यूज कम करना है। करना कैसे है कम? एक तो केवल अपनी आदत पे ना जाए कि सुबह सुबह गोली खाई, काम चल गया, ठीक हो गया, नहीं, उसको कोशिश करके कम करने की कोशिश करिए। कभी कभी स्विच ऑफ करिए, कभी कभी स्लो डोज लीजिए, कभी कभी एक दिन की सुबह की डोज लीजिए, रात की मत लीजिए, और 2-3 दिन बीच में गैप देने की कोशिश करिए अगर बहुत जरूरी है तो। या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर राजेश ने, कि आप रेबिप्राजोल पेंटोप्राजोल की बजाय रेनिडिन ग्रुप है, वो थोड़ा सा एसिड को कम खत्म करता है, उस ग्रुप पे आए। तो मेरी समरी ये है कि आप कोशिश करके इसको लंबे समय तक ना खाएं, लाइफस्टाइल चेंजेस करें और इससे दूर रहें। अगर आपको मजबूरी में खानी है तो कम से कम मात्रा में खाएं, दिन में एक बार खाएं, छोड़ के खाएं, या कम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाएं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स कुछ नंबर में ही है, बहुत ज्यादा नंबर तो मैं नहीं कहूंगा, डराने नहीं चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन कुछ नंबर में आ सकते हैं जो मैंने अभी लेबल किए, स्पेशली अवर सीनियर ग्रुप शो अवॉइड देम। चलिए एक बात और बता दीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए या तो सिरप लेते हैं या गोली रात को लेते हैं, तो उसके कितने हानिकारक असर हो सकते हैं अगर वो सालों साल लेते रहें तो? अगेन वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, और बहुत कॉमन भी है, ऐसा नहीं कि कॉमन नहीं है। पीपल दे, आई मीन आई वुड यूज द वर्ड अब्यूज द ड्रग। हाँ, we start abusing the medicine by taking them for long term without any rationale sometimes. कई बार तो हमें लक्षण होते हैं इसलिए हमें लेना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि एलोपैथी में है, so many ayurvedic and homeopathy medicine which are also abused for the same, rather बाकी medicines ब्रांच में को भी अब्यूज किया गया है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो इसमें दो तरह की मेडिसिन है। एक तो ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है। ऑस्मोटिक का मतलब है वो लेक्सेटिव जो केवल पानी को रिटेन करते हैं आंत में, और उससे आपकी आंत को साफ कराने में मदद करते हैं। उनके साइड इफेक्ट्स कम है, अगर आप उनको लॉन्ग टर्म पे यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट कम है। एक है स्टिमुलेंट लेक्सेटिव, वो जो आपकी आंत को स्टिमुलेट करते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी नसों को स्ट्रोंगली स्टिमुलेट करके आपकी आंत को साफ कराते हैं। उनके अंदर ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम हम ऐसे पेशेंट क्यों बने कि हमें सारी उम्र लेक्सेटिव लेना पड़ा। तो अगेन घूम घाम के चीज, जैसा डॉक्टर ज्योति ने बताया, लाइफस्टाइल पे आएगी, डाइट्स पे आएगी। तो आप कोशिश करके उन रिवर्सिबल मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे फोकस करें जो आपको कॉन्स्टिपेशन लीड कर रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिर से फिजिक्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और स्ट्रेस है। तो अगर आप नॉर्मल पर्सन है, कोई काउंटर रेगुलेटरी मेडिसिन नहीं खा रहे जिससे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो लाइफस्टाइल पे फोकस करके धीरे धीरे अपने लेक्सेटिव की मात्रा को कम कर दें। अगर आप ऐसी दवाई खा रहे हैं, जैसे आप न्यूरोलॉजी के पेशेंट हैं, आप पार्किंसंस के पेशेंट हैं, आप सिनडोपा खाते हैं, या कोई भी ऐसी एंटीकोलिनर्जिक दवाई खाते हैं, तो कम से कम मात्रा में ऑस्मोटिक लेक्सेटिव का प्रयोग करें रादर देन स्टिमुलेंट लेक्सेटिव्स। थैंक यू सो मच सर। आई नो वी आर गोइंग ओवर टाइम, बट एक दो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि दोबारा हमें इतनी अच्छी गैदरिंग कब मिले हमें पता नहीं। तो बहुत अच्छा आपने बोला लैक्सेटिव के बारे में। मैं एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि लोगों के मन में ये भ्रम है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनका कोई कभी नुकसान नहीं होता, तो आयुर्वेदिक लैक्सेटिव लंबे समय तक लेते रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट कुछ आयुर्वेदिक लैक्सेटिव का ये होता है कि उनके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है,
because they work on again the same osmotic aspect जैसे आपने बताया, क्योंकि नमक बहुत ज्यादा होता है तो बार बार ज्यादा देर तक लेने से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है और वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं होती जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता, हर दवा आपको डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। Now this is a open question to all of you, आप में से जो भी चाहे प्लीज कंट्रीब्यूट करिए। is there any टाइम प्रॉपर और एडिक्वेट टाइम डिफरेंस की खाना कितनी देर में खाना चाहिए, उससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, उससे कम समय में नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ टाइम डिफरेंस होना चाहिए, लाइक the interval between breakfast and lunch and dinner? हाँ जी, it should not be more than 2 to 2.5 hours, ideally. तो 2 hours है तो अगर हमने सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 12 बजे हमें लंच करना चाहिए। हाँ, लंच नहीं, आपको मिड Any मॉर्निंग of स्नैक। doctor sir, would No, you no, like you to should. contribute? आई थिंक डॉक्टर ज्योति यही कहना चाह रही है, मेजर मील्स और माइनर मील्स में फर्क करना होगा हमें। मेजर मील्स हाँ यूजली हम 6 से 8 घंटे के अंतराल पे खाते हैं, एंड दैट्स द राइट टाइम। एज वी डिस्कस, द टाइम टेकन फॉर डाइजेशन इज अराउंड 4 to 6 hours, और हम चाहते हैं कि हमारा स्टमक और छोटी आंत इवैक्यूएट हो चुका हो जब तक आपके पास नया खाना है। माइनर मील्स दे डिपेंड अपॉन योर वेट एंड योर लाइफस्टाइल एंड टाइप ऑफ वर्किंग यू हैव। सपोज मेरा बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मैं ऑफिस वर्कर हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेरा कोई वाटर लॉस नहीं है, मैं एसी में बैठा हूँ, तो दे आर टोटली डिफरेंट as compared to a person, a laborer who's working in a scorching heat, losing water, losing insensible loss and all those things, so there may vary. The important thing is आप हैं क्या। पहले आप अपने आप को समझिए कि आप नॉर्मल वेट में हैं, आप ओवर वेट में हैं, आप पहले तो आप जानिए कि आप सच में ओबीज हैं कि नहीं। और मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपनी प्रैक्टिस में यही लगती है कि many of the people, rather majority of people in our country, they don't know that they are overweight. हमारे देश में BMI की जो रिक्वायरमेंट है नॉर्मल वेट की, वो 23 या उससे नीचे है, और आप सच में देखेंगे तो 23 बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अकॉर्डिंगली अपने मील्स को मैनेज करना होगा। एक मेजर मील का गैप जैसा हमने बताया उसको उतना रखना है। माइनर मील्स अगर आप लेना चाहें तो जैसा मैडम बता रहे थे, आप बीच में 2 से 3 घंटे पे ले सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर लॉसेज एज वेल। मील स्किप करना एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, बिकॉज हम लोग, मैं डॉक्टर कपिल दोनों गैस्ट्रो के डॉक्टर्स हैं, मील स्किप करना हमारे लिए थोड़ा सा दुखदाई है, स्पेशली एसिड प्रोडक्शन वाले लोगों में, एसिडिटी वाले लोगों में स्किपिंग द मील में बी हार्मफुल। द मेजर रीजन फॉर दिस इज एसिड आपका हर मील पे बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत है कि अगर मैं मील के बारे में सोच रहा हूँ, खा रहा हूँ या इवन देख रहा हूँ तो मेरे अंदर एसिड बनेगा, और अगर मैं उस टाइम पे अपना फूड नहीं लेता तो आई एम नॉट बफरिंग दैट एसिड। फूड इज अ बफर। एसिड बना किस लिए? क्योंकि उसने उस खाने को पचाना था। अगर मैं फूड एज अ बफर नहीं लूंगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो अंटिल आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोटोकॉल पे हैं, आप वेट लूजिंग डाइट्स पे हैं, तो आप कोशिश करके मील स्किप ना करें। आप क्वांटिटी और क्वालिटी फूड को चेंज कर सकते हैं अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो। स्पेशली आपका फील्ड है डॉक्टर राजेश, जैसे आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, सो डायबिटिक पीपल, all those people also should not skip the meal. They should have something at particular amount of time. They may change the quality of food. That's what probably I would pass as a message. I think you are a better person to tell about the people who have metabolic issues. Thank you. Last question. Water intake, does it have any relation to food digestion? और कितना पानी पीना चाहिए from the aspect of a gastroenterologist, from the point of view of a GI specialist? आप में से कोई भी बोलना चाहें तो प्लीज कंट्रीब्यूट करिए। I वाटर think, शुड बी। yeah. Sorry, Dr. Kapil, डॉक्टर please carry on. बोलिए कपिल जी, प्लीज। हाँ, वाटर जितनी मात्रा में पी सके उतना ही अच्छा है। पर्टिकुलरली हम बात करें जिन लोगों को लीवर डिजीज है, जिनको पेट में पानी है, उनके लिए हम वाटर लिमिट करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी ना पिए। ओवरऑल यदि हम डिपेंड करता है कि क्या है, यदि हम बाहर काम कर रहे हैं, धूप में, तो हमें ज़्यादा थर्स्ट लगी, हम उसको रिप्लेस करने के लिए उतना ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होगा, तो हम उतनी मात्रा में वाटर ले सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन तो लीवर डिजीज और जिनको किडनी डिजीज है, देन इट रिक्वायर रेस्ट्रिक्शन। सर ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि अब खाने से पहले हम ज्यादा पानी पी लें, सो दैट वुड डाइल्यूट द एसिड एंड समहाउ इट वुड इफेक्ट द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ऐसा कुछ होता है क्या?
हाँ, ऐसा बोला जाता है कि अब खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना लें, क्योंकि जो एसिड से जो आमाशय में खाना पहुंचता है, जो उनका जो मिलाप होता है, उसको ये जो पानी पीते हैं वो डाइल्यूट करता है और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो उसके लिए वी आस्क देम टू वेट फॉर सम टाइम, और लें तो मिनिमल वाटर लें, और देन दे कैन ड्रिंक वाटर। Thank you, sir. That was really very enlightening. आप सबसे जो आज चर्चा हुई है उसमें इतनी सारी चीजें हमने सीखी हैं. अब अंत में I would request each one of you to give a small message to our audience. ज्योति जी, आपसे शुरू करेंगे. What is going to be your message to the audience? Are you there, ज्योति जी? Please unmute yourself. हाँ जी, माय मैसेज इज कि जो भी आप टीवी पे देखते हैं, या यूट्यूब में सुनते हैं, उन सब चीज़ों पे विश्वास करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मिल लें, किसी प्रोफेशनल को कांटेक्ट कर लें, और तभी आप इन सब चीज़ों पे विश्वास करें। बिकॉज हर किसी की फिजिकल कंडीशन डिफरेंट है, हर किसी की बीमारी डिफरेंट है, हर किसी का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। जो आप खा रहे हैं वो आप अपनी सेहत के अकॉर्डिंग खाएंगे, अपने एज जेंडर के अकॉर्डिंग खाएंगे। तो ये वही 2 बार परखिए, 2 बार डॉक्टर से सजेशन लीजिए, एंड फिर ही इसी राह पे निकले आप। थैंक यू। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत सारी गलत सलाह देती है और बहुत सारी भ्रांतियां फैलाती है. सो डॉक्टर कपिल सर, आपका क्या मैसेज रहेगा? My message is good digestion defines you. How good you are, how in good health you are having, it's defined by your digestion. How good is your digestion? And diet is different for different individual. And and then there are new tools to diagnose these digestive problem. Like यदि माल absorption नहीं हो रहा, तो उसके लिए we do have available tests like endoscopy, breath test. These are the modality, and that, as Dr. Pawan said, the lifestyle modification, healthy diet is key to prevent these diseases. Ideally, this should be prevented, not a once you develop and then we have to treat. The prevention is Wonderful. yeah. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kapil. I think that was a wonderful message. Prevention is better than cure. Pawan ji, now we're coming to you. And what is your Yeah. final message to our audience? Same. I mean, person or patient is the best doctor. Have a balanced diet, good physical activity, manage your stress. This is what we are trapped with. आजकल हम इसी ट्रैप में हैं. सो अपने स्ट्रेस को देखिए, आप कितना कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, कितना संतुलित आहार लेते हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. ये जो फैशन है हमारा अभी, या सोशल सिंबल्स हैं जिसमें हम बहुत अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग हम लोग कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ वी आर हेडिंग फॉर. सो ट्राई एंड बैलेंस दिस. नो स्मोकिंग ऑफ कोर्स, एंड वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल. That probably should be the message to have a good healthy body, and that's what we have वही हमारी इन्वेस्टमेंट है आगे के लिए. Thank you so much. So हमारी health में जो investment है, that is probably the best investment. Thank you so much, everyone. Now I would request Daniel Rajput ji sir to give a vote of thanks and to summarize. Over to you, sir. Please unmute Before yourself. Mr. Rajput starts, let me appreciate the wonderful host we had. Dr. Rajesh, you have been great. The clarity Thank of you. questions you asked were great. I'm really appreciating. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Dr. Rajesh Sikri, for keeping the whole session very engaging, important, and pertinent. Dr. Jyoti Singh, Pawan Rawal sir, Kapil Sharma ji, thank you very much for coming and sharing your very wonderful thoughts with our audience, and very lucidly mentioned that, how defense and digestion is your defense. How acid production varies from person to person, and there are no two persons who are same. This issue came up many times, and therefore, whenever any person is facing any difficulty, he must go and share his problems with the relative doctors, consult them, and then only take any preemptive steps. Otherwise, you are capable of harming your system much more than improving your system. Many doctors have brought out this issue of lifestyle. Lifestyle is creating a major problem in our lives. So everybody must have a balanced lifestyle, balanced diet, if they want good and healthy life going forward.
doctors have very nicely mentioned that, prevention is better than cure. And, many times we have heard this, but we need to actually practice this in our life if you want to have and live healthy and long and good life going forward. Don't become subservient to any medicine. Pawan Rawal had mentioned, don't continue to consume any medicine. He used a very nice word, abuse of medicine. So therefore, even if you are on some medication, your effort should be to see how you can, if not eliminate, reduce consumption of those medicine if you want a good and healthy life and a long life. So I want to thank each and every one of you and all the listeners. And you must take one message very clearly from our all the panelists, that each person is different. Each person's requirement of everything, whether it is food, whether it is salt, whether it is sugar, whether it is fat, is different. So there is no standard measure that we should try and use. So whenever there is any deficiency, any challenge that you have, you please go back to the right person, take his advice so that your body remains healthy for a very long time. Thank you very much, all the panelists, for coming and sharing your views and thoughts with us. And I'm sure all the listeners who have joined us would have taken a note of it, and they would have benefited from their experiences. Thank you very much. Thank you, SHM, for organizing such a wonderful panelist. And I'm sure your listeners would have enjoyed as much as we have enjoyed sharing our experiences with you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, everyone.